Good morning. I am Anil Agarwal, former Chief Manager, Punjab National Bank. Some people are asking, Sir, are you angry at IBPS or not? Yes, I expressed my anguish on style of functioning of IBPS 3 days ago. When I called IBPS 3 days ago on your behalf, the lady there abruptly cut the call and not passed on the information. Then the behavior of IBPS, first releasing a notice that exams are postponed and then withdrawing it and then again issuing the admit card, is not a professional working. IBPS must put the admit card at least 1 month in advance, because that will allow people to arrange their transportation, make their arrangement of travel and all those things. Then such a confusion that once you declare a date, then you withdraw the date, then you again make a date, does not augur well for the people. Ultimately, the candidates have every right to know what is in store for them. It is a question of their career. They are preparing for this examination for long. And due to some behavior by some organization, if their career is at stake, it is a bad thing. Yes, I always believe that there is a need of reform at IBPS level for various things. First, they should give proper notice, proper timeline to the candidates. Candidates should have ample time to arrange their things, because everybody cannot afford high cost travel. We should allow good time, even if that means extra effort at the level of IBPS. They should consider it. I am with you. What I say, if I say the exams will happen, it is in your benefit. But at the same time, the behavior of IBPS requires modification. This is not the way that you don't give the ample time to candidates to arrange their transportation, reach the destination. Once you say something, then you withdraw, then you keep the people guessing what is the thing. For last 10-15 days, we all are very tense. Every morning we wake up and we were waiting whether admit card will come or not. That is not the way. If you are planning to conduct an examination, tell the people what is the harm in that. I am with you. Some people wanted to know my feelings. I am expressing my feelings through this video. Yes, the behavior and the style of functioning of IBPS in this episode is not appreciable. They should modify, they should give adequate notice, they should allow time to the people to reach the destination. That is the fairness of thing. That is in the natural justice. Each and every person must have ample time to arrange transportation, reach the destination, accommodation and other things. The sentiment of the candidate must be kept as a top priority by any organization that is conducting the examination, because it is question of their career. अब यही बातें हम हिंदी में करेंगे. कुछ लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि सर आप नाराज नहीं हो IBPS से. प्रश्न बिल्कुल सही है. 3 दिन पहले ही मैंने अपनी नाराजगी उनके स्टाफ के बिहेवियर पर इस चैनल पे बताई थी आपको. मैंने आपके बिहाफ पे IBPS को कॉल किया और वहाँ जो कस्टमर केयर ऑफिसर थी उसने अब्रप्टली कॉल काट दी, जो बहुत गलत चीज़ है. कैंडिडेट्स को पूरा राइट है ये जानने का कि उनका एग्ज़ाम कब होगा, कैसे होगा, कहाँ पर होगा. और मेरा तो अपना मानना ये है कि एडमिट कार्ड कम से कम 1 महीना पहले इशू होना चाहिए. कैंडिडेट को पूरा वक्त मिलना चाहिए कि वो अपने संसाधन तैयार कर सके, अपनी टिकट बुक कर सके, अपने जाने की व्यवस्था कर सके, अपने रहने खाने पीने की व्यवस्था कर सके, ताकि शांति से वो एग्ज़ाम दे सके.
ये होना कि एग्ज़ाम की डेट आपने निश्चित की हुई है, पहले आप कह देते हैं एग्ज़ाम नहीं होगा, फिर आप कहते हैं एग्ज़ाम होगा, कितने लोगों ने अपनी टिकटें बुक कर ली, कितने लोगों ने अपनी टिकटें कैंसिल कर ली, कितना उनको फाइनेंशियल लॉस हो गया, इसकी कोई परवाह नहीं कर रहा। ट्रांसपोर्टेशन शुरू हुआ नहीं हुआ, इसके बारे में कोई नहीं सोच रहा। तो ये बिल्कुल सही है कि अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है उसको रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, उसको इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और इन सब चीज़ों को बताकर ही आगे चलना चाहिए। और ख़ासकर ऐसी स्थिति में जब सब लोग चिंता से ग्रस्त हैं, चारों तरफ परेशानी है, तो ऐसे में नॉर्मल से ज़्यादा नोटिस देना चाहिए। अगर नॉर्मली 14 दिन के नोटिस पे एडमिट कार्ड आते हैं तो ऐसे समय में तो 1 महीना पहले आ जाने चाहिए, ताकि कैंडिडेट को क्लियर कट पता हो कि कहाँ पर उसका सेंटर है। और मैंने तो आपको पता होगा 2 महीने पहले आपको ये सजेस्ट किया था कि चेंज ऑफ सेंटर के लिए आपको रिक्वेस्ट डालिए। आपने रिक्वेस्ट भी डाली पर उसको IBPS ने नहीं माना। सही यही होता कि वो आपने जो सेंटर की चेंज मांगी थी उस पर वो विचार कर लेते, आपको घर का सेंटर दे देते, वहाँ एग्ज़ाम कंडक्ट करा देते, तो आज ये परेशानी किसी को ना होती और जितने लोगों ने अप्लाई किया है वो सब इस एग्ज़ाम में बैठ पाते। फेयरनेस तो यही कहती है कि आप जो है, जो हालात हैं उसमें अधिक से अधिक सुविधाएं लोगों को मुहैया कराएं, उनके बातों को सुने, उनको समय पे सूचित करें। इस तरह का बिहेवियर कि आपने पहले कहा कि कैंसिल हो गए, फिर आपने कहा हाँ होंगे, फिर अचानक एडमिट कार्ड का निकल जाना, फिर लोगों को टाइम ना होना कि वो अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच सके, ये तो ठीक नहीं है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, गुस्सा तो जाहिर है हर आदमी पे है, आप में भी है, मुझ में भी है, सब में है, पर जो चीज़ें सामने हैं उस पर भी विचार करना आवश्यक है। कुछ लोगों ने कहा कि सर आप अपने व्यूज़ ज़रूर बताइए IBPS के बिहेवियर पे, इसीलिए मैं ये वीडियो डाल रहा हूँ। जो आपकी भावनाएं हैं वही मेरी भावनाएं हैं। सबको मौका मिलना चाहिए, क्यों नहीं मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए, और इस तरीके से मिलना चाहिए कि उसको लगे कि उसके साथ न्याय हुआ है। अगर किसी भी व्यक्ति के दिल को चोट पहुंचती है, उसको बुरा लगता है, तो वो सबके लिए ही बुरी बात है। सबको मौका मिलना चाहिए, सब सेंटर तक पहुंचे, सब एग्ज़ाम दे सकें। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन 1 महीना पहले एडमिट कार्ड इशू कर दे तो इसमें कोई बुराई नहीं है, कई ऑर्गेनाइजेशन इशू करती हैं। अभी UPSC ने इशू कर दिए हैं अपने एडमिट कार्ड। अब क्या मजबूरी रही IBPS की, मैं उस पर नहीं जाना चाहता, क्योंकि जो कैंडिडेट है उसको पूरी सुविधा मिले, ये सबको ध्यान रखना चाहिए और इसमें कोई दो राय नहीं है। गॉड ब्लेस यू ऑल।